And shifting focus now, amid the ongoing tension in Purola town, the Uttarkashi district administration in Uttarakhand has denied permission to the Mahapanchayat called by Hindu organizations on the 15th of June, that's today. Tensions in the hill town of Purola trace back to May 26th after two men allegedly tried to abduct a 14-year-old girl. Soon after, posters were put up by some people threatening one particular community. Here's the story so far, and then we go to then we bring you all the details. Take a look. In the town of Purola in Uttarakhand's Uttarkashi district, security has been stepped up. The police and administration are on high alert following the call for Mahapanchayat by some groups following an incident of alleged abduction. We are reporting from Purola market, and the security situation here has been heightened. Right next to me you can see that the police deployment in this market has been increased, and this has come in the aftermath of the love jihad case that cropped up, and after that a call for Hindu Mahapanchayat has been called, though the permission has still not been given. But looking at the sensitivity of the situation, you can see that how the police officials here are wrecking the main market of Purola. Tensions were heightened in the small hill town after posters threatening a community were put up on shops. Another CCTV footage shows how the police removed the posters. Similar kind of posters were put there as well. They have been removed by the local administration, but you can still see some shreds of those posters in the similar fashion like there were on the store of Mohammed Salim and Mohammed Rais. देखिए, सबसे पहले तो जो ये कांड किया इन्हीं लोगों ने किया। इन लोगों द्वारा ये कांड हुआ। एक नाबालिग को ये भगा के ले जा रहे थे, वो पकड़े गए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ने इनको ऐसा कुछ नहीं बोला तुम भागो, ये अपनी स्वेच्छा से यहाँ से जा रहे हैं। और ये दबाव न पब्लिक का दबाव तो पड़ता ही है कि जब तुम गलत काम करोगे तो पब्लिक का दबाव तो पड़ेगा ही। पब्लिक उनको दबाव दे रही है, भाई तुमने जब यहाँ रहना है तो ढंग से रहो। कहाँ से आई? अब इस चीज़ के बारे में हमको तो नहीं, हम तो दुकानदार आदमी हैं। हम तो अपनी सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को बंद करते हैं। पर हमको पता चला किसी ने पोस्ट लगाई है। अब इसके बारे में हमको कोई इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, किसी ने इनको मारा नहीं, किसी ने इनको पीटा नहीं, किसी ने इनकी दुकानों का नुकसान नहीं किया। किस वजह से ये यहाँ से अपना काम छोड़ के, क्योंकि मैंने आगे देखा मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रईस की भी एक दुकान थी, ऊपर नीचे दोनों भाई थे, घर पे ताला लगा हुआ है, क्या कारण है कि ये छोड़ के इस तरह भाग गए? मैम, हमने इनको कोई फोर्स नहीं करा गया है कि आप यहाँ से जाइए, वो करिए। बट ये है कि अगर ये गलत करेंगे तो गलत होगा इनके साथ, गलत करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। और इनकी ये कोई गलत नहीं हुआ इनके साथ अभी आज तक ये अच्छे खुशी खुशी रह रहे थे यहाँ पे। जब ये गलत करेंगे तो हम लोग भी फिर चुप नहीं बैठेंगे और हम लोग भी इनका साथ नहीं देंगे। Residents say that no threats or ultimatums were issued, but those who were allegedly on the receiving end have said that they were under pressure. शकील जी, हम यहाँ पुरोला में आए थे और हमने देखा कि आपकी दुकान बंद है। ये आप अपनी दुकान बंद करके क्यों गए हैं? मेरे से खाली करवाई है जी दुकान, इसलिए बंद है वो। किस लिए खाली करवाई है और किसने खाली कराई है? दुकान मालिक ने कहा है कि भाई मेरे ऊपर बहुत दबाव आ रहा है कि आपको खाली करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये दबाव क्यों आया है? ये 26 मई की वो जो केस आया था जहाँ लड़की किडनैप हुई है, उसके बाद आया है? जी उसी चक्कर से हुआ है। अच्छा, तो मकान मालिक ने आपसे क्या कहा, आप अगर बता पाए तो? मकान मालिक ने कहा कि दुकान खाली करनी पड़ेगी कि मेरे ऊपर दबाव है बहुत। किसका दबाव है? जो संगठन है वहाँ का। अच्छा, जो वहाँ पोस्टर चप्पा कर रहा है उस संगठन का दबाव है मेरे ऊपर कि आपको दुकान खाली करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ खाली कर दो। आप कब से रह रहे थे यहाँ पर? 45 साल हो गए हम लोगों को वहाँ पर। So what is the truth of what is happening in Purola? Is there something more than what meets the eye? ये पुरोला तहसील या विकास खंड एक ऐसा है उत्तरकाशी, वैसे तो पूरा उत्तरकाशी हमारा, यहाँ से कोई पलायन नहीं हो रखा। यहाँ के सारे काश्तकार लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, छोटे मोटे गरीब लोग हैं, छोटे मोटे अपने कारोबार करते हैं। लेकिन अगर अपने कारोबार के ऊपर भी अगर किसी की कोई दूसरी दृष्टि से कोई यहाँ पे आए, अब माना अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे
इस दुकान का किराया मुश्किल से 5,000 हो सकता है कि यहाँ के स्थानीय मार्केट के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि यहाँ का गरीब आदमी इतना महंगा सामान नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ 20-20 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। यहाँ पे इन दुकानों के आड़ में कुछ दूसरे कारोबार भी हो रहे हैं नशीले पदार्थों का। मैं देख रहा हूँ कि कुछ सालों से यहाँ परोला में हमारे जो छोटे युवा बच्चे हैं उनको स्मैक के ओर धकेला जा रहा है। कौन कर रहा है इस कारोबार को? मैं प्रशासन से वही तो पूछ रहा हूँ। आज आप इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, हमारे को महापंचायत करने से रोक रहे हैं। हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम आपका कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो बाहर से स्मैक आ रही है, बरेली से यहाँ स्मैक आ रही है, छोटे छोटे बच्चों को स्मैक खिलाकर इन्होंने बर्बाद कर रखा है। Despite constant appeals to maintain law and order and no permission for the Mahapanchayat, the groups are adamant. हम शांतिपूर्वक ढंग से महापंचायत का आह्वान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा मंतव्य किसी समाज की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बट ये है कि हिंदू समाज की बेटियों के साथ जो दुराचार विगत 2-3-4-5 घटनाएं हुई हैं यहाँ, तो ये बहुत ही निंदनीय है और हिंदू समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। With Section 144 being imposed, for now the Mahapanchayat has been officially postponed.